Hello, everyone. Welcome back to another episode of Connect Conversations. Hope you all are doing well. Today, we have with us someone who is making big and consistent steps in educating people about mindful and sustainable eating. Previously working as a banker with a leading bank in India for more than a decade, he quit his job in the year 2016 to return to his roots in farming. Born in a farmer family in Thaba Khurd village in Madhya Pradesh, he started growing vegetables in a poly house but faced many challenges, including excessive use of chemicals, high cost of production, and poor price realization. Keeping these challenges in mind, he, along with his wife, started a farm to kitchen initiative of organically grown produce. In the year 2018, it got formally registered as a startup under Startup India program. The startup encourages other farmers to take up organic farming and delivers these products directly to consumers. Today, they are serving organically grown products grown by 160 plus farmers to more than 2,000 families in Bhopal. This venture now is incubated under the Invent program of Government of India at the Indian Institute of Management, Calcutta Innovation Park. A very warm welcome to Mr. Prateek Sharma, founder, Green and Grains. Hello, sir. Welcome to MP Connect, and thank you for being a part of Connect Conversations. Thanks so much for calling me. I look forward to this conversation. Really very excited for this conversation. Thank you so much for calling me. A pleasure, sir. So, sir, हम शुरुआत बहुत ही obvious question से करेंगे आपके कि what prompted you? You were a very successful banker. So, what actually prompted you to turn to farming? आपके केस में अगर मैं कहूँ तो return to farming. तो आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही है सब बैंकिंग से लेके फार्मिंग तक, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए. Actually, I come from a farmer's family, so it all started from there. But problem ये है हमारे साथ हमारे ambition बड़े professional होते हैं, and that's how our societal norms are. So I also wanted to be doctor, so उसके लिए try किया, वो नहीं हुआ तो MBA किया, and then finally became a banker. So things went really well. We were very successful. I mean, me and my wife, we were a successful banker. We were doing really good. But somehow, once you are settled into your life, once you achieve your basic targets which you set for yourself in terms of money, in terms of roles, responsibilities, so all those things, once those things settled in, somehow that urge to achieve something personally, your personal goals, your bigger satisfaction, all those things start coming into your thought process, and we call it midlife crisis. So that thing started, and then we asked few questions to ourselves whether we can continue into this or not, and all those things. I mean, what gives us a complete satisfaction. So we started thinking about it, and farming, obviously, because of my background, came naturally to this. अब ये बात मैं कर रहा हूँ 2012-13 के आसपास ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, बट सोचते सोचते, क्योंकि अगेन जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी एक सेट सैलरी होती है, आपके सेट एक्सपेंसेस होते हैं, देन यू हैव किड, योर वाइफ, एवरीथिंग, और फिर सारी चीजें सेट एक पैटर्न फॉलो करती है, तो उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करना, यू लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिस्कस. सो एंड यू हैव योर पीयर ग्रुप, यू हैव योर फैमिली, इन योर फैमिली बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको बातें करनी होती हैं, समझना होता है, समझाना होता है, तो वो सारी चीजें बहुत लंबा समय लगा. बट फाइनली 2016 वी कुड डिसाइड कि अब समय आ गया है. So by then we have had a daughter already born, and she was already 3 years. तो तब तक चीजें काफी हद तक सेटल हो गई थी, कोई इमीडिएट टारगेट नहीं थे, तो वी कुड डिसाइड. सो फाइनली दिस थिंग हैपेंड इन 2016. 2015 में कहीं फार्मिंग की हल्की फुल्की शुरुआत हो गई थी, बट फाइनली ये प्लंज की जो बात है कि अब नौकरी छोड़नी है और खेती करनी है और सीरियसली इसको एक प्रोफेशन के रूप में लेना है, ये 2016 में हुआ. अगेन द टारगेट वाज सो एमबीए में हमें पढ़ाया गया है कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एंड हम एक इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है. आज हम करीब 60% एटलीस्ट लोग हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कितनी बुरी वहां हालत है ये भी सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं. तो इसीलिए लगा कि एग्रीकल्चर में यदि कुछ करना भी है तो चैलेंज भी बड़ा है, जरूरत भी वहां है लोगों की, और अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है, आप ज्यादा लंबे समय खुद को एंगेज रख सकते हो. सो विद ऑल दीज थॉट्स agriculture started. That's how the journey actually happened.
was not very easy one, because again मेरा background तो agriculture का था. Pratiksha was not coming from this background, so we had to discuss a lot of things, a lot of convincing had to happen. So but yes, we could manage. So that's how things started. Wonderful, sir. Great. So, sir, अगर हम green and grains की बात करें, so you are, I read somewhere that you are trying to create a broker-free market for farmers, and I think you have been able to achieve that to a certain extent. So, can you please elaborate on this? मतलब किस तरह के challenges आपने face किए? Basically, I would like to know what kind of challenges you faced while you were trying to achieve this notion. या सो इसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत सारे साइड्स हैं. मतलब हम सबसे पहले हमने ट्राई किया कि हम केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. दूसरा हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम ग्रो तो करेंगे, हम इसे फार्मर से कंज्यूमर तक सीधा लेके जाएंगे. तो हमें मार्केट अपना खुद का तैयार करना है. तो क्रिएटिंग अ मार्केट, एग्रीगेटिंग ऑल दोज थिंग्स, सो मेंटेनिंग अ सप्लाई चेन, मैनेजिंग कंज्यूमर्स. सो चैलेंजेस हमारे पास तीन तरफ से आ रहे थे. पहला, ऑर्गेनिकली हमें प्रोड्यूस करना है, विदाउट यूज ऑफ केमिकल हमें प्रोड्यूस करना है, जहां पे आपके पास जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो अवेलेबल नहीं है आज. मतलब आज केमिकल फार्मिंग में आप किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे, आपको एक सेट किसी भी चीज के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा कि वीट कैसे ग्रो करना है, टोमेटो कैसे ग्रो करना है, कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, फर्टिलाइजर है, वो सारी चीजें सेट हैं सब कुछ. बट ऑर्गेनिक में ये सब कुछ सेट नहीं है. सो हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलती है. सो प्रोडक्शन वाज अ चैलेंज. फिर फार्मर को माइग्रेट करना, मतलब आज वो केमिकल फार्मिंग में है, और आज कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन जो आज खेती कर रही है, इनने ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी की ही नहीं है. मतलब हम पिछले 35 40 50 साल से केमिकल वाली फार्मिंग कर रहे हैं. तो अब हमारे वो मेमोरी जा चुकी है कि हम कभी बिना केमिकल के भी फार्मिंग किया करते थे. तो आज आप बोले कि नहीं, विदाउट यूरिया आपको गेहूं प्रोड्यूस करना है, सो दे वुड बी शॉक कि क्या बात कर रहे हो, पागल हो तुम, यहाँ से जाओ. तो उस हिसाब से चीजें होती हैं. तो वो एक चैलेंज रहा. फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास यदि आपको जाना है, तो यू नीड टू हैव अ कंप्लीट बास्केट. मैं आज आपसे बोलूं कि नहीं, मैं सिर्फ आपको गेहूं सप्लाई करता हूं, तो आप बोलोगे गेहूं आपने मुझे दे दिया, मुझे चावल कहां से आएगा, मेरी दाल कहां से आएगी, मेरी सब्जियां कहां से आएंगी. तो एज कंज्यूमर आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपको सब कुछ एक जगह मिले, जिससे आपके लिए आप बहुत सारी जगह नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं. ये महीने में 8 से 10 बार होने वाले ट्रांजेक्शन है, तो आप चाहते हो कि आपका एक वेंडर ही हो, ज्यादा से ज्यादा 2 वेंडर हो, जो जहां से आप ये सब चीजें ला सकते हो. तो एग्रीगेशन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था. तो वो फार्मर का ग्रुप हमें बनाना पड़ा, और ग्रुप में लोगों को जो कन्विंस नहीं हो रहे हैं उनको कन्विंस करना एक चैलेंज है. फिर उसके बाद लास्ट माइल जो डिलीवरी है, एक सप्लाई चेन है, पूरा प्राइसिंग डिस्कवरी है, लोगों को कम्युनिकेट करना, कन्विंस करना, वो एक चैलेंज है. तो ये अपने आप में फार्म टू फोक को पुल करना, जिसमें आप पेरिशेबल्स लेके आओ, एक बहुत टफ बिजनेस कंसीडर होता है. और ये हम तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं. अभी पिछले कुछ 3 महीनों में जब से मार्केट थोड़ा सा ओपन हुआ है, D2C, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाले जो बिजनेस मॉडल है, इनको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, तब से हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हुई हैं. इससे पहले बहुत कठिन था सब कुछ. बट gradually we could progress, and as I said, I come from a farmer's family, so we could crack that code. So मेरे पास एग्रीकल्चर में मैं जीरो से शुरू नहीं कर रहा था. So खुद के खेत पे पहले फार्मिंग शुरू की, और वहां फार्मिंग शुरू करने के बाद हम एक लेवल पे पहुंचे. पहले अपनी एक लर्निंग हमने सेट की, और लोगों को वहां डिमॉन्स्ट्रेट किया कि देखिए, हम आपसे बोल जरूर रहे हैं आप टमाटर ग्रो करें ऑर्गेनिकली, पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे करना है. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने केमिकल फार्मिंग के लैंड को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे. सो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वी कुड मूव इनटू दिस. As I said, it was not a very smooth ride, but somehow people also responded. I mean, we had farmers who joined hands with us. We had people joining hands with us in terms of facilitating this complete operations. We had very good consumer set. So today, you mentioned we serve to close to 2,000 plus families. These families, we did not get them through any kind of advertising. ये सारी चीजें लोगों ने उनको वो चीजें अच्छी लगी, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बताया, एंड ऐसे हमें ये 2000 परिवार हमारे साथ आए. सो इट इज, आई मीन, द एनवायरनमेंट आल्सो हेल्प्ड अस इन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. So far so good. Incredible, sir.
So, Green and Grains, you started Green and Grains as an FPO. Matlab, it was started as an FPO. It was a farmers producers organization. So, how did you convert it to a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? मतलब आप अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, और किस तरीके से ग्रीन एंड ग्रेन्स फंक्शन करता है, आप लोग का ऑपरेशन मॉडल क्या है, किस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता पाएं। We started as a farmers group. हमारा जो प्रोडक्शन का जो टीम थी एक एफपीओ के रूप में वो रजिस्टर हुई और वहां से ये शुरुआत हुई। पर जब हमने इसे एक स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर, मतलब जब आईआईएम वाला जो हुआ, तो आईआईएम में या स्टार्टअप की हम बात करें तो स्टार्टअप जो प्रेफर किया जाता है एक फॉर्म, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया जाता है। सो एक स्टार्टअप, जब आप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में रजिस्टर कर रहे हो तो वहां आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, या एटलीस्ट एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक एलएलपी होना जरूरी है। सो वी थॉट कि एलएलपी से ज्यादा अच्छा एक लॉन्ग टर्म यदि हम देखें तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ज्यादा स्टेबल ऑप्शन है। सो फॉर टेक्निकल रीजन वी हैड टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो अब फिर हमने इसे बाइफरकेट किया। तो शुरुआत में इट वाज अ फार्मर्स इनिशिएटिव, ओके, बट देन once we realized that it need to be a startup, so we said एक हमें strategic business units अलग अलग SBUs we call it in business, हमें अलग अलग SBUs बनाने पड़ेंगे। Production can be one unit and aggregation and retailing can be another. Okay, so this startup can take care of aggregation and marketing side of it, consumer side of it, while the FPOs and farmer groups and individual farmer will become the part of the production side of it. So that's how this happened, that migration happened. About how our model, so it's a farm to fork, as I said. Farm to fork has a very flat structure. मतलब इसमें एक तरफ किसान होते हैं, उनका सारा जो मटेरियल, जो प्रोडक्शन है वो एक जगह एग्रीगेट होता है, और ये जो एग्रीगेटर है वो उसे अपनी लिस्टिंग, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। कंज्यूमर ऑर्डर करते हैं और ये एग्रीगेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो उसे डिलीवर करता है। एंड हेंस वी कॉल इट फार्म टू फोक या फार्म टू किचन, और किचन से किसान से उपभोक्ता, यदि हम हिंदी में उसे बोले तो ऐसा एक मॉडल तैयार होता है। सो ये हमारा मॉडल है। थोड़ा सा डीप में इसे बताऊं तो हमने एक फार्मर ग्रुप तैयार कर रखे हैं, एंड एज आई सेड वी आर अ एग्रीगेटर who try to serve almost everything which you require in your kitchen. तो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, डेयरी भी हम लोग शुरू बीच बीच में थोड़ा बहुत करते हैं जब अवेलेबिलिटी होती है, कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब कुछ हम लेके आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हमारे अवेलेबल है। आप यदि ग्रीन एंड ग्रीन्स ऐप देखेंगे तो ये सब कुछ आपको लिस्टेड मिलेगा। तो हम इसमें अलग अलग फार्मर ग्रुप्स हैं। सो वेजिटेबल्स हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां हमारा जो मार्केट है भोपाल, हम उसके आसपास ग्रो करें, जिससे उसकी फ्रेशनेस बनी रहे, उसकी कॉस्ट कम रहे। बट ग्रेन्स कैन ट्रेवल। सो आज हमारे राजमा उत्तराखंड से आते हैं। राजमा हम अपने यहाँ नहीं होता मध्य प्रदेश में, तो राजमा हमारा उत्तराखंड से आता है, हनी कहीं और से आती है, मिलेट्स कहीं और से आते हैं। तो इनके जो कोशिश हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया की स्पेशलिटी है वो एक बास्केट में कंज्यूमर को हम यहाँ दे पाए। तो नॉन पेरिशेबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, पेरिशेबल्स वी ट्राई ग्रोइंग लोकली। So that's the business model. And through WhatsApp groups and app, we communicate with the consumers, consumer place order, and we deliver to households. Okay, great, wonderful, sir. So, अगर मैं आजकल के जमाने की बात करूँ, in today's world, कोई भी एडिबल चीज जिसको हम ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल कैटेगरी में डालें तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब उसका जो प्राइस टैग हो जाता है। इन सच अ सिनेरियो, इस तरह के सिनेरियो में यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ भोपाल, इट इज अ tier 2 city and Madhya Pradesh is still developing. Like if I talk in terms of the state and the city, we are still developing, but still not caught up to that idea of affordability when it comes to our lifestyle. मतलब ये still catching up अगर हम उस तरह की बात करें। तो ऐसे सिनेरियो में how do you manage the profitability and salability of your organic produce? How do you manage that? There are 2-3, yeah, absolutely true. और actually affordability से कहीं ज्यादा mindset थोड़ा सा हमारा ऐसा होता है। एक छोटे शहर में हम बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो वो एक एंगल है। बट उसके साथ एक पॉजिटिव ये भी है कि हमारी कॉस्ट यहाँ पे काफी कंट्रोल्ड होती है।
तो वो पॉजिटिव होता है एक सिटी के लिए। बट कहीं ना कहीं मेजर जो क्वेश्चन है जो आपका है वो अराउंड है ऑर्गेनिक की जो प्राइसिंग है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर की है उसके लिए। तो हम सबसे पहले तो कोशिश ये करते हैं, क्योंकि बेसिकली इन इंडिया वी ऑल हैव बजट्स, so every activity has a budget. So we have budget for Correct. vegetables and fruits, we have budget for grocery, पेट्रोल, एवरीथिंग। सो कितनी हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं अपनी प्राइसेस को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की, कि हमारे जो मंथली बजट है फॉर ईच एक्टिविटी वी आर प्रेजेंट इन, हम लोग उसके अंदर रहें उसमें। सो मतलब यदि आप वेजिटेबल्स की बात करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम रफली 15 से 20% हमारी, उससे ज्यादा हम ऑफ ट्रैक ना जाएं। तो 20 रुपए का टमाटर शायद 24 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा, कोशिश ये होती है, कभी कार एक्सेप्शन होगा। तो वहां हम प्राइसेस वैसी रखते हैं। उसके बाद फिर कंज्यूमर उतनी तक तो ले लेते हैं। फार्मर के एंड पे भी हम कोशिश ये करते हैं कि इसका एक अच्छा प्रोपोर्शन फार्मर के पास जाए। तो भी नॉर्मली जो मार्केट फंक्शन करता है वो ये कि फार्मर, मतलब आप जब प्रोक्योरमेंट आपका हो तो आप कम से कम में प्रोक्योर करें और सेल ज्यादा से ज्यादा करें। बट यहाँ हमने एक सिंगल वैल्यू चेन, एंड फार्म टू फोक गिव्स यू दैट लिबर्टी टू हैव to put everyone on the same value chain. So what we do is we have defined our percentage for the farmers. Okay, so whatever consumer pays as a price, a certain fixed percentage goes to the farmer, right? So that's how the prices are controlled, and we try keeping the prices within 20% of that. And we also need to make consumers aware, so that awareness also is a continuous activity. So where we tell them about the productivities, the practices of that, the real value which organic produce would generate. So all those things, it's a mix of multiple things how things function. And I mean, ठीक है रिस्पॉन्स, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर ठीक है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंड एक्सेप्टेबिलिटी इज कमिंग अप। एंड with pandemic around the corner, pandemic, I mean, we've been through that. We now know the I mean, how eating safe, eating good food, what importance does it have into our lives. So now we know, so it has better acceptability now. Right. Wonderful, sir. Sir, again, just continuing in the same spirit, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो हमारा प्रदेश इस हमेशा से पॉपुलरली, ट्रेडिशनली अगर नोशन की बात करें तो एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना गया है हमेशा से। तो इस तरह का जो नोशन है, पॉपुलर नोशन, has it helped you in some sort of way in your work? And if it has, how it has, if you can 100%. tell. Yes, 100%. So, I mean, even if you consider residents of Bhopal, Right. they also come from farmers' families, or they are extension of farmer families, where probably one family, one brother is taking care of the farming at the village. The another brother or some members of the family have come to Bhopal, and they have I mean, they're here for the kids' education. Right? So, or someone has just, I mean, father is still doing farming at the village and the son is working in Bhopal. So they have direct linkage to farmer families. So we actually have many families where they're also consumers and they're also farmers for us. Right? So it's that close. Okay. And finding farmers is never tough. So that comes obvious because of the agriculture economy, as you said. So वो प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल नहीं होती, और खेती बिल्कुल आप शहर से लगी हुई आपको किसान मिलते हैं। सो आप बहुत आसपास भी ग्रो कर सकते हैं, हमारे किसान हैं यहाँ पे जो भोपाल से लगे हुए हैं। सो फाइंडिंग फार्मर इज नॉट टफ, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और एंटरप्राइजिंग फार्मर्स हैं। हमारे यहाँ की लैंड बहुत अच्छी है, वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहरों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज ये है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ये एमपी से स्टार्ट होने का। एक और बड़ा एडवांटेज है, मतलब बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज वन एडवांटेज, बट लोकेटेड सेंट्रली इन इंडिया इज वन बिग एडवांटेज। आप यहाँ पे प्रोडक्शन करके एटलीस्ट आसपास के 8 से 10 अलग अलग राज्यों को आप यहाँ से बहुत आसानी से सप्लाई दे सकते हैं।
So this is in our I mean to-do list where हम यहाँ पे बड़े फार्मर ग्रुप के साथ प्रोड्यूस करके और यहाँ की प्रोडक्शन को हम थ्रू फ्रेंचाइज नेटवर्क एंड थ्रू B2B सप्लाईज शायद हम यहाँ से बहुत सारे अलग अलग राज्यों को भी सप्लाई करेंगे, forget the cities. Okay. So I certainly see merits operating out of Madhya Pradesh. Right. Great. Wonderful, sir. Sir, before we end this conversation and we leave you, आप कुछ इस तरह का बताना चाहेंगे कि आप लोगों की मतलब from your initiative, do you provide any kind of qualification or training or some sort of advisory to other farmers? अगर उस तरह का आप लोग का कोई initiative है, and also if you would like to motivate and share some thought or advice to youth of our country and our state, especially the educated ones who want to get into agriculture as a profession. So थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता पाए. जरूर. देखिए, जहां तक हमारे नेटवर्क फार्मर की बात है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिनकी सप्लाईज ग्रीन एंड ग्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां तो डेफिनेटली हम ट्रेनिंग, बल्कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, वहां उनको जो रॉ मटेरियल भी जो चाहिए है, तो पिछले 5 सालों में हमने जो सीखा, मतलब एक फेरोमोन ट्रैप है तो कौन सा फेरोमोन ट्रैप है जो सबसे अच्छे से काम करता है, या कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे अच्छे से काम करता है, वो लर्निंग जो है वो सीधी सारे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. तो जो हमारे नेटवर्क फार्मर हैं उनको सारी मदद अवेलेबल है. जो उसके बियॉन्ड है तो हम कोशिश करते हैं, मतलब यदि कोई मैं फार्म पे हूं और उस टाइम पे कोई आने को तैयार है, आ सकता है, तो हम वहां करते हैं. फॉर्मली कोई अभी मॉड्यूल ऐसा नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन अ मॉड्यूल वेयर फॉर्मली वी कुड आई मीन गिव दैट एक्सेस टू द अदर फार्मर्स ऑफ आर लर्निंग्स. हमने जो सीखा है वो हमारे दूसरे फार्मर्स को मिल पाए. वो हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हो नहीं पाया, बट वो हमारे टू डू में डेफिनेटली है. Okay. जहां दूसरे फार्मर्स भी हमारी लर्निंग का फायदा उठा सकते हैं. फॉर्मली एज ऑफ नाउ नो, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जहां भी होता है कोशिश करता हूं कि जाऊं और वहां हम उस पर बात करते हैं. बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जहां पे मैं कोशिश करता हूं जाऊं, और यदि कोई मेरी लर्निंग शेयर करने से कुछ फायदा हो सकता है तो वो इनफॉर्मली या इरेगुलरली वो बीच बीच में सब कुछ चलता रहता है. अबाउट मैसेज टू स्टूडेंट्स एंड न्यू प्रोफेशनल्स, आई थिंक पेंडेमिक ने एक चीज बहुत अच्छी की है, एग्रीकल्चर को प्रोमिनेंस दिया है. और दो बड़ी चीजें हुई हैं, मतलब यदि मैं बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में बात करूं तो एक एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस आया है, क्योंकि ये लोगों ने रियलाइज किया है कि बाकी कुछ चले ना चले, एग्रीकल्चर फूड तो जरूर चलेगा ही चलेगा. ओके, दिस इज वन सेक्टर वेयर दिस वुड नेवर फेड. रादर इट इन अ सिचुएशन लाइक दिस द प्रोमिनेंस is increased, obviously बिजनेस इनका बढ़ता है. तो वो एक है. दूसरा एक नई चीज एक इवॉल्व हुई है. अब हम ज्यादा हमारे ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल होते हैं. सो देयर इज अ न्यू टर्म which has come into the market. A different category of startup is coming up which is called D2C, direct to consumer. सो मतलब जहां जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सीधा, अब वो B2B में नहीं जाता, सीधे किसी दूसरे बिजनेस को नहीं देता, अब वो सीधा अपने एंड कंज्यूमर आइडेंटिफाई करके और उनको सप्लाई करता है. तो एग्रीकल्चर में फॉर वेदर यू टॉक अबाउट रॉ फूड और प्रोसेस्ड फूड, दोनों केसेस में D2C बहुत प्रोमिनेंस में आया है, बहुत इंपॉर्टेंस उसे मिल रही है. तो हम एग्रीकल्चर इन जनरल एंड D2Cs ऑफ फूड दोनों बहुत इनके जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है. तो ये तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, बट इन जनरल भी एग्रीकल्चर में आज यदि आप थोड़ा सा सोशली भी इस बारे में सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है नई जनरेशन को यहाँ आने की. क्योंकि एक नई थॉट प्रोसेस, मतलब आज एक आप 45 साल 50 साल के किसान को यदि आप बोलेंगे कि आप केमिकल फार्मिंग छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए, थोड़ा सा हो सकता है उनको एक इनर्शिया होगा. बट यदि एक न्यू एज फार्मर, एक फार्मर सन जो आज बाहर नौकरी कर रहे थे, वो जाके बोलते हैं पिताजी मुझे 1 एकड़ जमीन आप दीजिए, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में टेस्ट करना चाहता हूँ, ट्रायल्स करना चाहता हूँ, और वहां यदि उन्हें सक्सेस मिलती है, और वो ऐसे हैं कि वो 1 एकड़ में जो ऑर्गेनिक होगी उसे, क्योंकि उनको सोशल मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया बहुत अच्छे से वो जानते हैं, शहर का डर नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. तो यदि आज न्यू एज जो प्रोफेशनल्स हैं वो यदि वापस जाते हैं और खेती में कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत सारे कारणों से खेती का भला होने वाला है.
और आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आज हम चाहे आप जो प्रोडक्टिविटी की बात करें वो बहुत कम है, तो स्कोप एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जरूरत है, और आई वुड इनवाइट एवरीवन, आई मीन नॉट एवरीवन, द पीपल हु कैन कम, हु आर विलिंग, who have some interest into this should definitely come, try out things. It is needed. So I would welcome all of them. All right. Thank you so much, sir. That was wonderful, wonderful advice, wonderful experiences that you shared. And as they say, ki health is wealth. So I think opting for sustainable and mindful eating is the first step in achieving that. And this organic produce and everything is actually helping and aiding us in our health as well as our economy and our farmers. So it's a wonderful initiative that you are doing. And thank you so much for taking out time and sitting with us. It was an honor to have you with us. And also to our viewers, if you have any sort of question or query that you would like to ask Mr. Sharma, please don't hesitate. You can write to us at info@mppconnect.com, or you can drop your message on any of our social media platforms. We'll surely get back to you with his answers. And thank you for joining us. We will see you in our next conversation.